ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਸਕਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਗਿਣਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਮ। सहाबा पाका के नाम से मशहूर कब्रिस्तान जिसमें 20 फुट लंबी कब्रें हैं, इसकी हकीकत और तारीख क्या है? 7 सहाबा इकराम किस तरह जोशो जज्बे के साथ और कितनी देर तक अपने सिरों के बगैर कुफार के साथ जंग लड़ते रहे और कैसे मट्टी में दफन हुए, आइए जानते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त एक मुकामी बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस कब्रिस्तान की कहानी सुनेंगे, दास्तान सुनेंगे कि आखिर असल स्टोरी, असल कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी पुछत भाई पुछत इतने जेड़े आया काफला ये साहबा इकराम करने आ समझे गया। तो जंग पिछे इतने कफार सी उस टाइम, तो जंग पिछे लगी, फिर उत्थे रह गए। अगों लड़ते लड़ते ये जगह सी, ये भी उन्हें वीरान की थी। अच्छा। फिर बंदियां ने आके यार सिर भी कोई नहीं, तो ने 7 बंदे तबाही ला दी। मतलब 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ, ਉਹ ਗਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਸਕਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਫੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ और तबलीग वास्ते निकल जाओ। ये वो काफला सी गिरने सारे साहबा इकराम। हाँ हाँ हाँ। और कद तकरीबन कोई 20 फुट से ज़्यादा ही है। 20 फुट तो ज़्यादा कद से ज़्यादा माशाल्लाह। वो कब्र अंदर बिच बनी हैं, जी, जी। मौजूद बरांडा बने हैं, पक्के सत्ते लगे। जी जी जी। उस वजह तो इनका नाम साहबा पाक का कब्रिस्तान रखा है। साहबा इकराम कब्रिस्तान पहले कब्रिस्तान कोई नहीं सी, जिसे वो दफन इतने फिर नाल बाद ही कब्र बनी हैं। अच्छा। ये कब्र कब्रिस्तान बाद बने। ठीक होगा, ठीक। पहले तो कोई कब्र नहीं सी, कब्र पहले सब तो पहले ये बनी है। जी जी। इस तो बाद फिर नाल दबदे रहे फिर वो कब्रिस्तान। जी जी। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖੀਏ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਪੁੱਛਤ ਬਾਈ ਪੁੱਛਤ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ। जी जी जी। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ। जी जी जी। ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਭ, हाँ हाँ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਸਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਖਤਮ। अच्छा। ਯਾਰ मतलब ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਘੋੜੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨ ਬਾਅਦ। 65 ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਨ 65 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी जी। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਯੂਬ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जी। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਕਾਫਲਾ। अच्छा। ਆਹ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੁੱਛੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ। जी जी। जी नाज़रीन, तो आपने ये बुज़ुर्ग शहरी जो मुकामी यहाँ के हैं, इनकी एक ज़ुबानी कहानी सुनी कि आज से 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात, उस वक्त उन्होंने एक काफ़िला भेजा था। वो काफ़िला यहाँ कुफ़ार के साथ जंग लड़ रहा था, तो वो जंग लड़ता लड़ता यहाँ पर पहुँचा। 7 सहाबा थे वो, तो 7 सहाबा वो घोड़ों पर सवार थे और उनके जो सर थे वो धड़ से जुदा थे, जो उनके सर वो धड़ से अलग थे। तो उस वक्त भी वो जंग यहाँ पर करते करते यहाँ पर इस मुकाम पर आ पहुँचे थे। तो यहाँ पर जो लोगों ने उनको देखा, लोगों ने कहा कि आपके तो
सर भी नहीं है, बिना सर के आप अभी भी यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। तो उस वक्त उनको पता चला कि हमारे तो सर भी नहीं है, तो वो उसी वक्त यहीं पर वो गिर गए और यहीं पर वो दफन हो गए। तो उस वक्त आज से तकरीबन 1400 साल पहले अगर कहा जाए तो उस वक्त के ये यहाँ पर कब्रिस्तान आबाद हुआ। वो यहाँ पर जब उनकी कब्रें बनी तो उसके बाद यहाँ पर कब्रिस्तान का जो बनने का सिलसिला चलता रहा। तो नाज़रीन, ये मुकामी लोगों की राय है, हकीकत क्या है इसके बारे में कोई भी सही तरीके से बयान नहीं कर सकता है, ना ही किसी ने बयान की है। जो भी बताते हैं वो इतनी ही कहानी, इतनी ही स्टोरी बताते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसकी असल हकीकत है क्या। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, आपको सहाबा पाका की जो कब्रें हैं वो दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। ये नाज़रीन देखें आप, माशाल्लाह इतनी लंबी, जिस तरह जो मुकामी शहरी हैं उन्होंने बताया कि 20 फुट ये लंबी कब्रें हैं। तो आप ये देख भी सकते हैं कि माशाल्लाह से इन कब्रों की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा है। और इन कब्रों की लंबाई को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 1400 साल पहले सहाबा पाक जो थे उनके कितने जो लंबी लंबी उनकी हाइट थी और उनका उस वक्त जो ज़माना था वो कैसा होगा। आप ये जो कब्रें मेरे साथ मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी जो लंबी लंबी हैं। और 26 जून को मुकामी शहरी बता रहे हैं कि ये जो इसी माह का 26 तारीख आएगी, इस तारीख को, और इस माह की 26 तारीख को बता रहे हैं मुकामी जो यहाँ के लोग हैं कि 26 तारीख को यहाँ पर उर्स मुबारक होगा इन सहाबा पाक का। तो उसमें ये एक मेले का, यहाँ पर एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद भी 26 तारीख को किया जाता है।